वो मैंने इम्प्रूव किया है, तो आई एक्सप्लेन दैट सम अगेन। ओके, सो जो डाउट आपका था वीआरएमएस से रिगार्डिंग, वीआरएमएस में किसी ने पूछा था कि हमारा जो फॉर्मूला था इट वाज 3PV अपॉन NM, ठीक है, और गिवन में उन्होंने डेंसिटी दिया था 1.44 kg पर मीटर क्यूब। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये जो we know what is density, density is mass upon volume, but here this small m is the mass of a single particle and this volume is the volume of the whole container. तो mass of the whole container, सिर्फ single particle का mass लेके density consider नहीं किया जाता, overall mass लेके किया जाता है। and overall mass क्या होगा आपका n into m, where एक single particle का mass is m, number of particles is this much, so when you multiply capital N into small m you will get the total mass of the gas inside the container. So ये V upon NM, ये पूरा जो पार्ट है ये डेंसिटी को सब्स्टिट्यूट होगा। होप जिसका भी डाउट था यू आर क्लियर विद द थिंग्स। दिस V by NM is your density, is your Y density actually 1 by rho, because rho is equals to mass upon volume, total mass upon volume, correct? But this small m is the mass of a single particle. So total mass लेने के लिए आपको n into m, जिसमें एक का इतना है, इतने सारे हैं, तो टोटल कितना होगा n into m. So v upon n into m will be 1 by rho, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, and you'll get the VRMS का फॉर्मूला है under root of 3PV upon rho. Hope you are clear, जिसको भी ये डाउट था। Next time revising those that kilomole वाला सम प्लीज ध्यान से सुनो। ओके, उसके बाद विल गो अहेड विद द रिवीजन ऑफ योर मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक। अगेन मोनोएटॉमिक शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, डायटोमिक अच्छे से समझेंगे बिकॉज उसके बारे में और भी कुछ चीजें जाननी है हमको, ठीक है फाइन। जैसे कि हमने कंसिडर किया था सम कि हमको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना था, वी नीड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन दैट सम। ओके, बट उन्होंने केसेस दिए थे कैसे कैसे निकालना है, जिसमें से I'm again only I'm explaining the first case, बाकी के केसेस you can do. So we need to calculate kinetic energy per kilomole, per kilomole के लिए निकालना है। Kinetic energy is equals to 3 by 2 nRT, where n is 1 mole. Let us consider n is 1 mole, or let us consider n is mole. पर मुझे पर किलो मोल के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, किलो को मैं बाद में इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं पहले पर मोल निकालती हूँ। तो पर मोल के लिए मैं क्या करूंगी, ओवरऑल इक्वेशन को मोल से डिवाइड करूंगी। सो you'll get the equation as kinetic energy by n is equals to 3 by 2 RT. This becomes kinetic energy mole per mole. Okay, when you substitute you'll get the answer as 3 by 2, R is your 8.314 and temperature is your 400 Kelvin. Okay, now when you multiply all this you'll get the answer as 4986. This is the answer which you get, but you want the answer in kinetic energy per kilomole. You need to get answer in kinetic energy per kilomole. So what you need to do, you'll multiply and divide by 10 raised to 3. अब ये नीचे वाला जो 10 raised to 3 है, this will be resulting into kilo, और ये जो ऊपर वाला है वो इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यू कैन राइट द आंसर एज, इस तरीके से लिख सकते हो इफ यू वांट। नीचे का आंसर, नीचे का जो वैल्यू है वो के में कन्वर्ट हो जाएगा। सो you'll get the, अगर यहाँ पे तुम यूनिट देखो you'll get the unit as here, you'll get the unit as, इसका जो यहाँ पर यूनिट है the unit is joules पर मोल, पर मुझे पर किलो मोल में आंसर चाहिए, तो ये 10 raised to 3 के बन जाएगा। सो दिस विल बी 4986 into 10 raised to 3 joules पर किलोमोल। ओके, अब ये 10 raised to 3 आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, या फिर यू कैन मेक अ डेसिमल चेंज, 4.986 into 10 raised to 6 joules per kilomole. This is what you can do. Hope you are clear. For the last time I did a mistake here.
but I'm improving it. Is it clear to everyone? Again, I'm repeating. You need to calculate kinetic energy per kilomole. First, we'll go ahead for kinetic energy per mole. Then we'll introduce kilo. So kinetic energy per mole will become 3/2 RT. If you substitute the values and the units, you'll get the answer as 4986. And the unit will be joule per mole. The unit you will get is joule per mole. But you want the answer in kinetic energy per kilomole. You want the answer in kilomole. So if you want to introduce a kilo, that is 10⁻³, you have to multiply and divide by 10⁻³. This 10⁻³ becomes kilo, and this one 10⁻³. You can leave it like that, or you can make a decimal shift and you will get the answer in 4.986 into 10⁶ joules per kilomole. This is what. आगे के क्वेश्चंस मैं तुमको सेंड कर दूंगी. It is there in your textbooks as well if you have your PDF. So you can solve the answers by using this concept. Hope you are clear. Now I'm revising the monoatomic and diatomic part. Okay. I'm going ahead with the monoatomic and diatomic part. When I discussed about monoatomic gases, monoatomic itself name suggests it is mono, single. There is a single molecule. And the gases, for example, the gases are your helium, neon, krypton. This type of gases are your monatomic gases. Okay. So the single particle can have translational motion along x-axis, y-axis, and z-axis. Any of the axis. सीधा जा सकता है, y-axis पे जा सकता है, z-axis पे जा सकता है. तो अगर कहीं मिडल में भी जा रहा है तो आप x और y को लेकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए या डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये बताता है कि आपको कितने इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है किसी भी पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए. तो इस कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए आई नीड 3 एक्सिस, along x-axis, along y-axis and along z-axis, because it is performing a translational motion. बहुत छोटा पार्टिकल है तो रोटेशन जैसा कुछ कंसीडर नहीं कर सकते यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पर 3 degree of freedom are okay to explain the coordinate system or configuration of this single particle. This was about your monoatomic gas. When I talk about diatomic gas, अब यहाँ से ध्यान से सुनना. Diatomic वापस से अच्छे से explain कर रही हूँ. Okay. I'm not explaining you law of equipartition of energy here because law of equipartition of energy काफी अच्छे से हो चुका था. But we need to have go back because law of equipartition of energy का use हम आगे करने वाले हैं. We are going to use it. Okay. तो एक शॉर्ट में बताती हूँ. पहले law of equipartition of energy, उसके बाद मैं diatomic पे जाऊंगी. क्योंकि डायटोमिक में हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं. अगर तुमको याद हो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, या किसी भी एक्सिस के अलोंग, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अलोंग, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये हर एक काइनेटिक एनर्जी जो है ये हाफ केवीटी कंट्रीब्यूट करता है टोटल एनर्जी को. Yeah, it contribute half kVt to total energy. ठीक है. And this kinetic energy is also known as quadratic of velocity. I'm focusing on it क्योंकि मुझे आगे इसका use आने वाला है. Okay. Now we'll go ahead with the diatomic. ठीक है. While discussing about the diatomic, name itself suggests di means two. Here 2 molecules are always in combination, like oxygen, nitrogen. These gases are the diatomic gases. Okay. इसमें जो particles होते हैं वो हमेशा attached होते हैं एक दूसरे से. Now if I consider this particle, एक ये 2 combination मैंने consider किया है OO का. अब अगर मैं इस molecule को देखूं overall, तो ये जो molecule है ये
पहले तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। एक ये एक्स एक्सिस के अलोंग सीधा सीधा घूम सकता है, जहां पे मैंने इसको फिक्स किया है। ये वाई एक्सिस के अलोंग घूम सकता है, इट कैन परफॉर्म अ ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, आगे पीछे जा सकता है, अलोंग वाई एक्सिस ऊपर नीचे आ सकता है, अलोंग जेड एक्सिस अंदर और बाहर की तरफ जा सकता है। ओके, सो दिस particle can have 3 translational motion. Fine. Now this particle, see these are the single particles, बहुत ही छोटे हैं और इनको मैंने क्या किया है, x एक्सिस के along रख दिया है। तो x एक्सिस के along का रोटेशन कंसीडर करना इज यूजलेस। ओके फाइन। सो ऑफ कोर्स ये जो पार्टिकल है ये 2 और मोशन परफॉर्म करने वाले हैं। ट्रांसलेशनल तो 3 हो गया, एक ये z एक्सिस के along घूमने वाले हैं, z एक्सिस के along घूमेंगे, दिस इज वन रोटेशन, और दूसरा ये y एक्सिस के along घूमेंगे बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है? I have given you the example in the previous video with the help of a pen cut open. Okay, I have explained you that कि आपका जो पेन का ढक्कन है उसको आपको रोटेट करके मैंने बताया था कि कैसे आप रोटेट कर सकते हो। So it will rotate along z axis and it will rotate along y axis. Are you clear? So there is the 3 coordinates are required to explain the translational motion of these molecules, and 2 coordinates are required to explain the rotational motion. So overall 5 coordinates, independent coordinates are required to explain the configuration of this diatomic molecule. 3 translational और 2 rotational. But यहाँ पे अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलते जा रही हूँ। ये जो पार्टिकल्स है ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन पार्टिकल्स को मैंने ये एज्यूम किया था कि जो पार्टिकल्स है ना यहाँ पे, ये पार्टिकल्स रिजिड है, दे आर रिजिड इन नेचर। रिजिड का मतलब क्या होता है कि जो बीच का ये जो बॉन्ड है ये किसी कड़क चीज से बना हुआ है, मींस इट इज नॉट वाइब्रेटिंग। समझ में आ रहा है? जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग और वुडन एक पेन कंसीडर करो और स्प्रिंग कंसीडर करो। स्प्रिंग में एक वाइब्रेशन होता है आगे के पीछे की तरफ, कंटिन्यूसली इट इज वाइब्रेटिंग, करेक्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर मैंने जो पहला अजम्पशन लिया है वो ये लिया है कि मेरा जो पार्टिकल है वो रिजिड किसी पेन जैसे मटेरियल से बना है एंड इट इज नॉट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है इनके बीच में। ये मेरा एजम्पशन था, इसीलिए मुझे सिर्फ किसको किसको एक्सप्लेन करना पड़ा, मुझे सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को एक्सप्लेन करना पड़ा। एक और बात, नाउ ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ट्रांसलेशनल मोशन को का जो काइनेटिक एनर्जी होगा फॉर ट्रांसलेशनल मोशन along x axis, y axis, z axis, x axis के along जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m vx square, y axis के along it is given by half m vy square, and z axis के along it is given by half m vz square. अब रोटेशनल एनर्जी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यू विल प्रूव इट, आई डोंट नो आपका वो पार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, यू विल प्रूव इट कि रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, where I is the moment of inertia along a particular axis and omega is the angular speed of the particle. जो काम ट्रांसलेशनल में सिर्फ मास करता है वही काम रोटेशनल में इनर्शिया करता है। ओके, जो काम रोटेशनल में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में इनर्शिया करता है, और जो काम यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कर रही है, लीनियर स्पीड कर रही है, वही काम यहाँ पर एंगुलर स्पीड करेगी। सो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, where I is the moment of inertia along a particular axis and omega is the angular speed along that axis. Okay, now ट्रांसलेशनल कितने मोशंस हो रहे थे, along x, along y, along z. रोटेशनल कितने हो रहे हैं, along y and along z. So rotational motion का जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन,
उसमें दो पार्ट आएंगे, एक तो अलोंग वाई एक्सिस का हाफ आई वाई नीचे इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में काफी डीप एक्सप्लेनेशन होगा इन रोटेशनल मोशन, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगी इसके बारे में। हाफ आई वाई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डूइंग अ वर्क ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, बट इट इज नॉट मास। ओके, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड समथिंग, mass and for your explanation it is combination of mass and the distance from the axis of a particle। बट फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक में जो काम मास करता है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। सो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन दो प्लेन के क्रॉस हो रहा है, एक तो वाई एक्सिस, दो एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, एक तो वाई एक्सिस दूसरा जेड एक्सिस। सो वाई एक्सिस का इट इज गिवन बाय हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी के क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे, हाफ एम बी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम बी जेड स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, where Iy and Iz are your moment of inertia along y and z axis respectively, and this omega y and omega z are your angular speed along y and z axis. Okay, so total energy, Om please unmute yourself and ask. मैम वो एक्स पे नहीं लिया क्योंकि लाइक वो फिक्स है ना उधर। नहीं हाँ फिक्स्ड है, और ये पार्टिकल देखो कितना छोटा होगा। हाँ हाँ तो वही एक्स वही एक्सिस के अलॉन्ग नेग्लिजिबल। तुम रोटेशन सोच सकते हो कि कैसे परफॉर्म होगा। और दूसरी बात, जिस एक्सिस पे उसको रख दिया जाता है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम जीरो। ठीक है, ओके so along x axis, on that axis there is no kinetic energy of a rotational motion, because at that point, at that axis, your moment of inertia becomes zero. You'll study all these things in your क्यों rotational जीरो? motion. क्योंकि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो, उसका डेफिनेशन मैंने बीच में समझाया था कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। बट जब वो एक्सिस पे ही है तो डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल क्या हो जाएगा फ्रॉम द एक्सिस? हाँ जीरो। प्रोडक्ट में जीरो। तो हाँ हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दैट एक्सिस जहाँ पे आप उसको जीरो। रखते हो वो जीरो हो जाता है। ये सारी चीजें आप काफी डीप में पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में, ठीक है। बट स्टिल मुझे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने तुमको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो फिलहाल सिर्फ दिमाग में ये रखो कि जैसे मास काम करता है इन ट्रांसलेशनल, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है इन रोटेशनल, बट इट इज नॉट अ मास। okay, it is combination of mass and the distance, square of a distance. समझा? Fine, so I'm going ahead. So total energy जो contribute होगा because of both of them क्या होगा? Total energy will be this kinetic energy plus this kinetic energy, that is kinetic energy due to translational and kinetic energy due to rotational. So आपका overall equation becomes half m bx square half m by square plus half m bz square plus, अब रोटेशनल वाले लिख रही हूँ, हाफ आई बाय ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। सो जब मोनो एटॉमिक था टोटल एनर्जी वॉज हाफ एम बी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम बी जेड स्क्वायर। बट जब डाई एटॉमिक है तो दो और इंक्लूड हो गए हैं because of the rotational. So your total energy becomes half m bx square plus half m by square plus half m bz square. I'm not doing anything, Aman. I क्या बोला था? I is moment of inertia. I is known as moment of inertia. Moment of inertia वही काम करता है जो mass करता है in translational motion, but it is not a mass. For your understanding, it is product of mass and square of the distance from the axis. It is a product of mass and square of the distance of a particle from the axis. समझ में आया अमन?
Yes, miss. Okay, I'm going ahead. So total energy here, it will be due to translational plus rotational motion. अब यहाँ पे भी law of equipartition apply होता है. Of course, each one of them will contribute half of kBt. This will contribute half kBt. This will also contribute half kBt. This will also contribute half kBt. This one will also contribute half kBt, and this one will also contribute half kBt. Means a total energy in your diatomic molecule, half plus half plus half, 5 times hai. So it becomes 5/2 kBt. In monoatomic, it is 3/2. But in diatomic, your total energy is 5/2 kBt. Hope you are clear till this much. सब कुछ समझा है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, वरना I'll go ahead. Should I go ahead then? Okay, I'm going ahead. Keep these things in mind. बोलो. Ma'am, KBT like 5/2. हाँ, हर पार्ट आपका कितना कंट्रीब्यूट करता है? हाफ ऑफ केबीटी ना. तो यहाँ पर कितने पार्ट्स है टोटल? ओम. हाँ मैम, बराबर बराबर समझा? ये चीजें याद रखो. मोनोएटॉमिक था तो सिर्फ ट्रांसलेशनल था, इसलिए 3/2 kBt आया. डायएटॉमिक है तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है, so 5/2 kBt आया. बट अगेन आई एम कमिंग टू द टॉपिक जो मैंने पीछे लिया था, दिस वन, कि यहाँ पर मैंने पार्टिकल्स को रिजिड कंसिडर किया है. रिजिड कंसिडर किया है, इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन मोशन नहीं हो रहा है. मैंने वाइब्रेशन को कंसिडर नहीं किया है. I said that these particles are made like bricks. इनमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिए I got the assumptions है. आगे I am improving that assumption, और improve करने के बाद what I will get, that I am going through. ठीक है? So when I assumed that there is no vibration between the particles, so I have the total energy as 5/2 kBt. Okay, but in real cases, vibration of course we need to consider. तो अगर तुम real cases लेते हो तो उसमें vibrations होते हैं particle के बीच में. There is a vibration and they vibrate. I'm using one word, please, one statement, please ध्यान से सुनो कि what I'm using. And they are vibrating like one dimensional harmonic oscillator. ये हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ये यू विल स्टडी इन ऑसिलेशन चैप्टर. अर्लियर आपका ऑसिलेशन पहले आता था, फिर काइनेटिक आता था. अभी उन्होंने क्या किया है, पहले काइनेटिक चैप्टर रख दिया है. सो दिस पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट हो रहा है, ये आगे पीछे मूव भी हो रहा है. मतलब ट्रांसलेशनल था, रोटेशनल था, अब एक और आया है, दैट इज वाइब्रेशनल. अगर तुम रियल पार्टिकल्स को देखो तो दे वाइब्रेट. Okay, they vibrate. So they vibrate like one dimensional harmonic oscillator. मतलब एक डायमेंशन में हार्मोनिक ऑसिलेटर है. हार्मोनिक का मतलब समझोगे when you will study oscillation chapter. नहीं समझा रही हूँ फिलहाल. When I continue or someone will continue with oscillation, they will explain you what is harmonic oscillator. Just इतना समझो कि periodic in nature होते हैं. Periodic मतलब they repeat their. Of course, I'm coming to it, please. I'm coming to it. So this will continuously vibrate. This too will continuously vibrate, and it is a periodic motion. That's why it is known as harmonic oscillator. Periodic, अपना motion continuously repeat कर रहे होते हैं, to and fro. ठीक है? Oscillation का मतलब ही होता है कि to and fro motion from a mean position. So ये continuously to and fro move हो रहे होते हैं. मतलब एक और motion non-rigid particles में होता है, that is vibrational. Or of course we cannot ignore it. So because of this vibration also there is a contribution to degree of freedom. In monoatomic it was 3. In diatomic, when I consider the particle as rigid, it was 5. But now I am considering that the real particles which vibrate. Now the total energy for non-rigid particles which vibrate is because of 3 motions. First is your kinetic energy due to translational motion.
plus kinetic energy due to rotational motion plus kinetic energy plus potential energy, that is energy due to vibrational motion. अब ये समझाऊंगी क्यों मैंने ऐसा बोला. Here kinetic energy due to translational motion, kinetic energy due to vibrational motion. Of course ये 3 होने वाला है, ये 2 होने वाला है, इसके बारे में समझना है. So this vibrational motion consists of two things. E vibrational, that is energy due to vibrational motion, consists of two things. First, the kinetic energy which is required to move this particle. So it contributes kinetic plus potential energy. क्योंकि potential क्यों आ रहा है, kinetic क्यों आ रहा है, because it is moving, it is vibrating, correct. और potential इसलिए आ रहा है क्योंकि they are bounded with each other. समझा? There is a boundation in between. So it consists of the vibrational motion contributes two kind of energy, two types of energy. One is your kinetic energy because of the motion, which I am giving as half mu square. क्योंकि vibration के time पे speed अलग होगा. Half mu square plus potential energy. एक minute. Plus potential energy half k r square. Potential energy in an harmonic oscillator. You will prove it in oscillation chapter that potential energy in harmonic oscillator is given by half k r square, where k is known as force constant and r is the distance between the particles. So आपका जो vibrational है वो दो चीजों को contribute करेगा, दो types of energy को contribute करेगा. एक तो motion की वजह से kinetic energy और दूसरी since they are bounded with each other, दोनों एक बाउंडेशन में है, तो there will be a potential energy. So one will be the kinetic energy and the another will be a potential energy. It will be contribution for the two parts, two types of energies here. So आप ये बात ध्यान दो, ट्रांसलेशनल था 3, रोटेशनल था 2 और वाइब्रेशनल कितने को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 को. सो वाइब्रेशन विल बी 2. मतलब अगर कभी भी आपको ऐसा बोला इन एंट्रेंस कि आपका जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट भी कर रहा है, तो ये बात दिमाग में रख लेना कि ट्रांसलेशनल का 3 होता है, रोटेशनल का 2 होता है और वाइब्रेशन इटसेल्फ 2 को कंट्रीब्यूट करता है. भले वो एक ही एक्सिस पे हो रहा है, इट इज मूविंग अलोंग अ सिंगल एक्सिस, तो हमारे दिमाग में आते करे तो सिंगल एक्सिस के अलोंग ही वाइब्रेट हो रहा है, तो हमको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना चाहिए. नहीं, अगर ये सिंगल, अगर वाइब्रेशन कंसीडर करने बोला है तो आपको सीधा 2 कंसीडर करना है, क्योंकि एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंट्रीब्यूट करता है, एक ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरा ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी. आपको 2 चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है वाइब्रेशनल में, उसका कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए. सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर बिकम्स 3 + 2 + 2, दैट इज 1 मिनट क्षेत्रज्ञ. सो हियर योर टोटल एनर्जी बिकम्स 7/2 kBt. 3 because of translational, 2 because of rotational and 2 because of vibrational. अब जिसको जो भी डाउट है प्लीज पूछो. जिसने भी चैट्स में लिखा है प्लीज अनम्यूट करो और पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगी. हेलो, वो मिस वाइब्रेशनल स्टेप से फिर से बताओ ना. वाइब्रेशनल से? हाँ वो दिस क्षेत्रज्ञ. ओके, क्षेत्रज्ञ ध्यान से देखो, जब मैं पार्टिकल को नॉन रिजिड कंसिडर कर रही हूँ तो इट इज बिहेविंग लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है, सो इट इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग. ओके, नाउ व्हेन इट इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग, सो ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ये 2 चीजों को कंट्रीब्यूट कर रही है. ये जो वाइब्रेटिंग मोशन है ये 2 चीजों को कंट्रीब्यूट कर रहा है. एक तो जो मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है वो विच इज गिवन बाय हाफ mu². अब यहाँ पे v नहीं लिया मैंने क्योंकि वाइब्रेशन का स्पीड अलग हो सकता है. और दूसरा, सिंस दे आर बाउंडेड विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को बाउंडेड है, both of the things are bounded, so there will be an introduction of potential energy between these two. Okay, so one is this kinetic energy is due to the motion
and this potential energy is due to the foundation of these two molecules with each other. तो मतलब आपका एक वाइब्रेशनल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत पड़ रही है. एक मिनट समझाती हूँ. दो कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ रही है. एक तो काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करना है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी को. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज, यू विल प्रूव इट इन ऑसिलेशन चैप्टर, that potential energy in a spring like structure is given by, or harmonic oscillator is given by half k r square, where k is known as force constant, r is the distance between the particles. Okay, अब ओम पूछ रहा है मैम यहाँ पे v क्यों नहीं लिया? See, all these things are notations. ओम v ऑलरेडी हमने पीछे यूज किया था जब पार्टिकल को, पूरे पार्टिकल को एक एक्सिस पे घुमा रहे थे. तो ऑफ कोर्स वाइब्रेशन का जो स्पीड होगा वो अलग होगा, इसीलिए मैंने एक अलग नोटेशन का यूज किया है. Is there anyone else who is having doubt? Please ask. क्योंकि ये चीजें क्लियर करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरे एक्सिस पे वाइब्रेट नहीं होएगा? अगर तुमने दो पार्टिकल को ऐसा रखा है तो ऐसे ही वाइब्रेट होगा ना. सीधा रखोगे तो सीधा वाइब्रेट होगा. तो एक वाइब्रेशन एक्सप्लेन कर दोगे, वो तो तुम किस ओरिएंटेशन पे रख रहे हो मैटर करता है. तो यही तो चीज हमने ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल पे किया. हाँ, तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे हमने एक्सिस को फिक्स करके बात की है फॉर वाइब्रेशनल. क्या आप किसी भी एक्सिस के अलोंग रखो, किसी भी एक्सिस के, यहाँ पे एक्सिस को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्या कि अलग अलग एक्सिस लेके बात करें? इनमें ऊपर जब हमने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल लिया था, हमको यहाँ पे एक्सिस स्पेसिफाई करना पड़ रहा था कि उसका स्पीड कौन से एक्सिस के डायरेक्शन में है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन का स्पीड एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता. वाइब्रेशन इज अ वाइब्रेशन, किसी भी डायरेक्शन में रखो. बट व्हेन यू से ट्रांसलेशनल मोशन, तुम बोल रहे हो मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ, ठीक है, यू आर सेइंग आई एम मूविंग स्ट्रेट, तो तुम स्ट्रेट चल रहे हो वो समझाने के लिए तुमको पूछेगा वेयर यू आर मूविंग स्ट्रेट. यू आर मूविंग इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. समझे? तो उधर तीन हो गया. हाँ, ट्रांसलेशनल के लिए. हाँ, बट व्हेन इफ यू आर सेइंग आई एम वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन सिंपली मींस वाइब्रेशन. लेकिन वो पूछेगा ना कि कौन सा एक्सिस पे वाइब्रेट हो रहा है. क्या फर्क पड़ता है? एक्सिस क्यों बताएगा तू वाइब्रेशन के लिए? तू बता, एक्सिस बता के तू क्या करेगा वाइब्रेशन का? तो पता चलेगा ना कि एक्स एक्सिस पे. एक मिनट सुन. दो पार्टिकल्स जिस भी डायरेक्शन में होंगे हमेशा वाइब्रेट करेंगे. इट विल ऑलवेज वाइब्रेट, है ना? तो उसको सीधा रख के वाइब्रेट कर, हॉरिजॉन्टल रख के वाइब्रेट कर, वर्टिकल रख के वाइब्रेट कर. वाइब्रेशन में तेरे को एक्सिस समझाने की जरूरत है क्या? तू जब मूव हो रहा है, ट्रांसलेशन में भी क्यों था? उधर भी तो स्ट्रेट चल रहे थे ना. हाँ, स्ट्रेट चल. तो स्ट्रेट तूने, मैंने सिर्फ तुझे बोल दिया स्ट्रेट चल, तो तेरा क्वेश्चन सामने से ही आएगा ना कि मैम स्ट्रेट चल तो बोल रहे हो, पर स्ट्रेट चलूं तो कौन से डायरेक्शन में चलूं? सीधा जाओ, ऊपर जाओ, बाजू में जाओ. बट मैंने बोला कि ओम अपने बॉडी के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर, सारे पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर. तो पूछेगा क्या कौन से एक्सिस में वाइब्रेट करूं? नहीं, और वैसे भी फिर मतलब नहीं होएगा ना, क्योंकि पार्टिकल्स तो वाइब्रेट होके एक ही जगह रहेंगे. हाँ, उनका ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग. समझ में आया? इसलिए अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत पड़ी. और सिंगल वाइब्रेशन ने ही दो को कंट्रीब्यूट किया. समझा ये दो क्यों आए? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सिस, इट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि पोटेंशियल इसलिए मैम. हाँ मैम बोलो. हाँ तुम बोलो. मैम पोटेंशियल इसलिए लिया क्योंकि अब वो अपोज काम कर रहा है ना, ये लाइक फिक्स है तो क्या अपोजिट काम कर रहा है. स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है सब. ऑफ कोर्स कोई भी स्प्रिंग वाइब्रेट होना नहीं चाहती है, पता है ना? कोई भी चीज तुमको कोई बोले कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो, चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे. तो यू विल डेवलप अ पोटेंशियल एनर्जी ना. यस, एग्जैक्टली. सो योर सिंगल वाइब्रेशनल विल कंट्रीब्यूट टू, that is your kinetic plus your potential. तो एक वाइब्रेशन के कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए it contributes to. Is there anyone else who is having doubt? Please ask. मैम इसका सबका एक क्विक रिवीजन दो ना. किसका? ये पूरा. हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो. फाइन. 7/2 क्यों लिया? ओम 7/2 क्यों लिया? इसने 3/2 केबीटी को कंट्रीब्यूट किया. अच्छा, आपने टोटल बोला. ओके. हाँ, टोटल बोला. E is representing total energy. Okay, I'm going ahead with the short revision. Please ध्यान से सुनो, ठीक है? मोनोटॉमिक था,
सिर्फ 3 डायरेक्शन में मूव होगा। उसका ओरिएंटेशन समझाने के लिए मुझे सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ईच विल कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ केबीटी, ईच ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट विल कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ केबीटी, ओके। सो टोटल बिकम्स 3/2 केबीटी इन मोनोएटॉमिक, but in diatomic along with the translational motion there is 2 rotational motion as well. But when I'm considering that this particle is a rigid particle, means they are not vibrating, okay, starting में our assumption is this. So इसके configuration को समझाने के लिए मुझे कितनों की जरूरत पड़ रही है? एक तो तीन translational energy है और 2 rotational energy है. So in total I required 5. So here total energy is given by 3 translational plus 2 rotational. Translational energy is given by half mvx square plus half mvy square plus half mvz square plus half I omega y square plus half iz omega z square, where iy and iz are the moment of inertias along y-axis and z-axis respectively. I've explained you what is moment of inertia, okay. Now each one will contribute according to law of equipartition of energy. Each one will contribute half of kbt. So in total energy, in this the total energy becomes 5/2 kbt for your diatomic molecule. For monatomic it was 3/2 kbt. For diatomic it is 5/2 kbt, okay. But when I say that my particle in general, in real, your particles vibrate, and it vibrates like a one-dimensional harmonic oscillator. It means it is oscillating in a one dimension, एक डायरेक्शन में मूव, एक ही डायमेंशन में मूव हो रहा है. सी ओम तुम्हारे आंसर का क्वेश्चन ये स्टेटमेंट भी देता है, इट इज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब एक ही डायमेंशन का यूज हो रहा है, तो बाकी के डायमेंशंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बाकी के डायरेक्शंस का नहीं लिया, हालांकि फर्स्ट एग्जांपल वाज क्वाइट इनफ टू एक्सप्लेन यू. नाउ दिस वाइब्रेशनल, अब ऑलरेडी 3 थे ड्यू टू ट्रांसलेशनल, 2 है ड्यू टू रोटेशनल. अब ये वाइब्रेशनल जो है, ये 2 इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है. एक तो काइनेटिक एनर्जी जो उसके मोशन को एक्सप्लेन करेगा, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज नाउ वी आर कंसीडरिंग दैट दिस पार्टिकल्स आर वर्किंग अगेंस्ट समथिंग. ठीक है, कोई भी पार्टिकल कंटिन्यू, कोई भी चीज अपने आप को कंटिन्यूसली क्या करती है, वाइब्रेट करना नहीं देना चाहती. सो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ है. एंड इन हार्मोनिक ऑसिलेटर दिस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय half k r square, where k is force constant and r is the distance between the particle. ठीक है, पीछे का स्पीड और ये स्पीड सेम नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन का स्पीड अलग होगा और पूरा बॉडी जो मूव हो रहा है उसका स्पीड अलग होगा. सो ऑफ कोर्स हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी, यहाँ से 3/2 केबीटी मिलेगा. हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, करेक्ट. यहाँ पे 2/2 केबीटी होगा, और यहाँ पर भी हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी 2/2 केबीटी. So in total here the total energy becomes 7/2 kbt. 7 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, 3 + 2 + 2. तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि वाइब्रेशन बोल दिया एक सिंगल एक्सिस के अलोंग, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में सीधा 2, एक लेने के बदले आपको 2, भले वो वन डायमेंशनल बोल रहा है फिर भी आपको 2 कंसिडर करना है. क्यों? क्योंकि उस एक सिंगल वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है, kinetic as well as your potential. समझा? Is there anyone having doubt here now? कोई है तो पूछ लो. आयुष, 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 अमन, क्षेत्रज्ञ, सबके डाउट क्लियर हुए हैं? कुछ प्रॉब्लम नहीं है? Fine, I'm going ahead then. Now, मैं बार बार एक वर्ड पे फोकस कर रही थी, that this kinetic energy is quadratic of speed और quadratic of velocity. ये वर्ड बार बार क्यों बोल रही थी? क्योंकि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, इसको निकालने का एक और तरीका है. डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का ये तरीका है कि जितने भी क्वाड्रेटिक्स वाले टर्म है ना, जितने भी क्वाड्रेटिक्स वाले टर्म है उनको सिंपली काउंट कर लो. जितने क्वाड्रेटिक्स वाले टर्म होंगे उतना आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा.
जैसे अगर मोनोटॉमिक गैस की बात करें तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, 3 क्वाड्रेटिक्स वाले टर्म थे, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। तो वहां पे हमको टोटल एनर्जी कितनी मिली थी? 3/2 kBT। जब हमने रोटेशनल लिया रिजिड पार्टिकल का तो कितने थे? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर हाफ एम वी जेड स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई बाई ओमेगा वाई स्क्वायर हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने टोटल क्वाड्रेटिक्स थे? 5। तो टोटल एनर्जी बिकेम 5/2 kBT। और यहाँ पर कितने क्वाड्रेटिक टर्म्स है? 3 + 2 + 2। यहाँ पे भी 2 क्वाड्रेटिक्स है ना, करेक्ट। सो दिस बिकम 7/2 kBT। तो आप क्वाड्रेटिक्स टर्म कितने हैं उसको काउंट करके भी आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। समझ में आया? दिस इज अ शॉर्टकट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि इतना सोचने से अच्छा सीधा अगर आपके पास इक्वेशन है तो उसके क्वाड्रेटिक्स वाले टर्म देखो, जितने क्वाड्रेटिक्स होंगे उतना एनर्जी आएगी। समझ में आया? क्लियर विद द थिंग? ओके, शुड आई गो अहेड विद अ न्यू टॉपिक देन? नाउ एक बात ध्यान रखना, ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है इसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? ये सिर्फ वैलिड होता है, इट इज ओनली वैलिड एट हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर्स पे वैलिड होता है। जो एकदम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है ना, एक्सट्रीम लो, जहां पे आपके पार्टिकल्स सीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी काम नहीं करता। यहाँ पर हायर फिजिक्स काम करती है, मॉडर्न फिजिक्स काम करती है। यहाँ पर ये जो फंडा है ना, ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और बहुत सारे लॉज बने हैं, वो आगे अगर ओम तुमने फिजिक्स पढ़ा गलती से तो तुमको पता चलेगा। लो प्रेशर पे इट वर्क्स, ओनली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टेम्परेचर्स। प्रेशर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसको, क्योंकि ये एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। इसका फॉर्मूला इटसेल्फ बताता है ना कि उसको प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी को आपके सिर्फ टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। सो टेम्परेचर से जब फर्क पड़ता है तो इट ओनली वर्क्स फॉर हाई टेम्परेचर्स। लो टेम्परेचर पे इसका जो गैस का बिहेवियर है वो पूरा चेंज हो जाता है। आपका जो गैस है जैसा बिहेव कर रहा है वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस वजह से एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स पे ये काम नहीं करता। तो दिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ओनली वर्क एट हाई टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर पे इट डज नॉट वर्क। फिर नया फिजिक्स इंट्रोड्यूस होता है। ओम अनम्यूट करके पूछो। वही मैम की स्टेट लाइक चेंज होने लगता है इसीलिए ना सब। स्टेट नहीं, एक्चुअली जब हम पार्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं ना ओम, तो हमने ये सारे पार्टिकल्स मैक्सवेल की तरह एक्सप्लेनेशन लिया है। मैक्सवेल ने जो पीछे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उस तरीके से। तो ये आगे जाके ना बहुत अलग अलग ही बिहेव करता है। अब आगे समझोगे कि अभी आपने फिजिक्स का पी भी नहीं पढ़ा है, या स्टडिंग बेसिक्स, तो आगे जाके आपको समझेगा कि एग्जैक्टली ये बिहेव कैसे करता है। सिर्फ स्टेट की बात नहीं होती है, कुछ और भी चीजें हैं जो इनका बिहेवियर चेंज करती है, जिसके बारे में मैं आपको अभी नहीं समझा सकती और ना आप समझ सकते हो। और लाइक आपको उतना वाइब्रेशन knowledge होएगा, नहीं है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है सब। नहीं, उससे भी कुछ अलग होगा, बहुत ही क्वांटाइज लेवल पे, क्वांटम लेवल पे बात होती है। तो प्लीज ओम विल नॉट गो फॉर इट, बिकॉज मैं अगर चाहूँ भी तो भी तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे ही टीचर को हमको समझाने के लिए कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगा है उन टॉपिक्स को समझाने के लिए। तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड। सो अभी आप फिलहाल बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद धीरे धीरे विल गो अहेड। अगर तुम कभी फिजिक्स पढ़ोगे और हम मिले तो श्योर विल डिस्कस ऑन इट। ओके, should I go ahead with the next topic then? Okay, now the next topic that we are going to discuss is your specific heat capacity. इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। किसी को याद है कुछ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं पूछूं क्या अनम्यूट करके? किसी को याद नहीं है तो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नया नाम सुन लिया आज। Q by m dt, correct Aman? Q by m dt, but this is the formula for you. Can you give me the definition or explanation regarding specific heat capacity? होता क्या है समझा सकते हो?
Okay, go Aman. Unmute yourself and answer. मिस कोई भी ये सब्सटेंस को वन मिस उसका मिस एक सब्सटेंस मिस कोई भी यूनिट मास सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड रहता है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं. Exactly. This specific heat capacity मैंने तुमको समझाया था और तुमने 10th में हीट चैप्टर में भी ये चीज पढ़ी है. दो पार्ट होता है, एक तो होता है लेटेंट जिसके बारे में बहुत नहीं समझाऊंगी ना कुछ बोलूंगी फिलहाल, सिर्फ इतना समझ जाओ कि लेटेंट की जरूरत बॉन्डिंग तोड़ने के लिए होती है. ये वो एनर्जी होती है जो बॉन्ड तोड़ती है. और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो लेटेंट के जस्ट बाद आता है. जब लेटेंट का काम खत्म तब स्पेसिफिक हीट का काम स्टार्ट होता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी or heat energy required to increase the temperature of a unit mass by 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस से किसी भी एक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिसका मास 1 यूनिट हो, जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हर मेटल का अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है. कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिसमें हम मोस्टली जो यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं, मम्मी बोलती है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, इसको फटाक से, जो आप स्टील के बर्तन यूज करते हो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं. मतलब वहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लो, उसको ज्यादा हीट की जरूरत नहीं है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको आप गर्म करते रहो करते रहो करते रहो. मम्मी भी बोलेगी कि ये कढ़ाई ना बहुत मोटी है, ये जल्दी गर्म नहीं होती, इट टेक्स टाइम टू गेट हीट अप. ओके, सो वहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हाई बिकॉज अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर है उस पर्टिकुलर यूटेंसिल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इज हाई. ओके, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is your amount of heat required to raise the temperature of a unit mass by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. अब इसमें हमने दो पढ़ा था, एक था Cp और एक था Cv. हाँ, एक था Cp, एक है Cv. That is specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume. ये constant pressure पे किया हुआ है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया हुआ है. ओके, नाउ ऑफ कोर्स अगर तुमको याद हो तो सीपी और सीवी में से कौन सा बड़ा होता है? कैन यू एक्सप्लेन, किसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, सीपी की या सीवी की? किसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की? सीपी की. एग्जैक्टली, सीपी की वैल्यू इज मोर. अमन समझाती हूँ क्यों. यहाँ पर आप जो हीट दोगे, ठीक है, वो दो पार्ट में जाएगा. प्लीज ये सारे एक्सप्लेनेशंस मैं आगे यूज करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना. यहाँ पर आप जो भी हीट दोगे वो दो काम के लिए जाएगा. एक तो वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर बढ़ाएगा. मतलब एक ही अमाउंट ऑफ हीट, अगर दोनों में मतलब समझो सेम अमाउंट ऑफ हीट मैंने दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही अमाउंट ऑफ हीट दो पार्ट में दो काम के लिए डिवाइड हो जाएगा. एक तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और दूसरा फिर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए. मतलब पहले वॉल्यूम इंक्रीज होगा ऑफ कोर्स, उसके बाद बचा हुआ टेम्परेचर के पास जाएगा. मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा नहीं, तो जो सीपी रिक्वायर होगा, जो हीट रिक्वायर होगा, सीपी वी नो ना स्पेसिफिक हीट क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर. तो हीट जो रिक्वायर होगा टेम्परेचर के लिए, वो पूरा का पूरा टेम्परेचर पे तो यूज हो नहीं पा रहा है, मतलब हमको और ज्यादा हीट देना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. बट सीवी में ऐसा नहीं है. सीवी में मैंने क्या किया, वॉल्यूम को मैंने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम के साथ कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा किसको चेंज करने में चला जाएगा, टेम्परेचर को. मतलब ये फटाक से यहाँ पर अगर मैं सीवी पे काम कर रही हूँ तो कम हीट में फटाक से टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सो सीवी इज ऑलवेज स्मॉलर एज कंपेयर टू सीपी. क्यों? क्योंकि सीपी में क्या होता है, उसका वही अमाउंट ऑफ हीट दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, वहां पे वॉल्यूम भी चेंज होता है. ओके, सो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी. होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, नाउ आई एम गोइंग अहेड. वेट फॉर अ व्हाइल.
Om, please unmute yourself and ask. Expand होता है. Exactly, it expands. इसलिए बोलते हैं ना खाना पकाते समय उसको ढक दो. एक तो उसका प्रेशर रीजन होता है कि हीट उसी में रह जाएगा, दूसरा एक्सपांशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा. ओके, नाउ स्पेसिफिक हीट तो समझा दिया, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट. अब उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो. आज मैं चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रही हूँ. कल और परसों में चैप्टर के आज ऑलमोस्ट चैप्टर मेन पार्ट चैप्टर का खत्म हो जाएगा. कल परसों में चैप्टर विल बी ओवर. ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे मेयर्स रिलेशन. क्या है समझाती हूँ. मेयर्स रिलेशन gives the relation between CP and CV. CP और CV के बीच में मेयर्स रिलेशन आपको रिलेशन देता है कि what is the relation between CP and CV that we are going to prove today. Okay, ध्यान से देखो. I am saying let us consider an ideal gas where P is the pressure, V is the volume, and T is the temperature of the gas respectively. Okay. Now, एक बात ध्यान दो. समझो मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी जिसको आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय DQ. स्मॉल अमाउंट ले रही हूँ समझाने के लिए. कंसिडर मैंने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी है एक वेसल को, ठीक है, और वो वेसल एकदम फ्री है. तो क्या होगा, ये जो हीट एनर्जी होगी ये दो पार्ट में डिवाइड होगी. पहला पार्ट वो उस वेसल का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी. देयर विल बी अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. प्लस दूसरा पार्ट देयर विल बी अ वर्क डन. ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये जो मैंने बताया है अभी ये आप थर्मोडायनेमिक्स में एज फर्स्ट लॉ पढ़ोगे कि आप जब भी कोई एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो वो पूरा का पूरा अमाउंट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता. कुछ अमाउंट है ना इंटरनल एनर्जी में चला जाता है. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे आप या फिर पढ़ा होगा. ठीक है. सो DQ में से कुछ अमाउंट विल गो फॉर DU एंड कुछ अमाउंट विल गो फॉर W. दैट इज वर्क डन. एंड दैट वर्क डन, ऑफ कोर्स वर्क डन कैसे होगा. वर्क डन इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. दैट इज हियर ऑफ कोर्स दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी चेंज इन वॉल्यूम. करेक्ट. एंड सो योर फॉर्मूला इज DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV. Where DQ is the amount of heat you are giving, change in the heat. DQ is the amount of heat you are giving. DU is the amount of heat energy which is used for change in internal energy. And PdV, where P is the pressure and dV is the change in the volume. जिसकी वजह से काम हो रहा है, जिसकी वजह से वर्क हो रहा है. अब let us take the cases. First case. Let us take a case at constant वॉल्यूम. मैंने ये ऊपर का जो केस लिया है जो मैं हीट दे रही हूँ अब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे लूंगी. जैसे ही मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे लूंगी यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. मतलब DV विल बिकम 0 मींस दिस होल टर्म विल बिकम 0. ये आप पढ़ोगे. दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज, पढ़ा है तुमने, दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस. इनको आइसोकोरिक बोलते हैं. आइसोकोरिक का मतलब होता है जहाँ पे वॉल्यूम चेंज ना हो. ठीक है. तो मैंने पहला क्या कंडीशन लिया, आई एम टेकिंग द वॉल्यूम एज कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया मतलब वर्क डन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में. देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम हियर. सो योर फॉर्मूला बिकम्स DQ इज इक्वल्स टू DU. क्योंकि PdV क्या हो गया 0. देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. अभी पूछ के लो बिकॉज सम डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर रहेगा तो आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी व्हेन आई रिवाइज. DQ इज इक्वल्स टू DU. ठीक है. नाउ दिस DQ इज इक्वल्स टू DU is also given by a formula. I'm introducing CV now. CV dt, where CV is molar
specific heat at constant volume. CV is molar specific heat at constant volume. Means this is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mole by 1 degree Celsius. Who was that? I missed your message. Please ask. Please अपने आप को unmute करो और पूछो. Please ask. मिस वो सी बड़ा है. Who's this? मिस वो सी बड़ा है क्या? CV में C जो है. हाँ. The change in temperature. Okay. So dq is equals to du is equals to cv dt. Okay. I'm going ahead then. CV is the molar specific heat. अब फर्स्ट केस में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था. दूसरे केस में अब हम क्या कर रहे हैं? विल कीप द प्रेशर कांस्टेंट. टेम्परेचर सेम रख रहे हैं. टेम्परेचर सेम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको एनर्जी को चेंज नहीं करना है. वी डोंट वांट टू चेंज द एनर्जी. और हमको पता है एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे. मतलब एनर्जी, चेंज इन एनर्जी दोनों भी केसेस में क्या होने वाली है? सेम. बाकी का जो बचा हुआ होगा वो जो भी हो. बट एनर्जी, सिंस आई एम डूइंग दिस 2 experiments at same temperature, the change in energy in both the cases will be constant because energy only depends upon the condition of a temperature. और किसी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, so here at constant pressure, your dq, yeah, I'm taking this dq as dq1. ठीक है? And this one is dq2. Whatever heat you are giving is used for. Now pressure is constant. मतलब वॉल्यूम चेंज होने वाला है. और वॉल्यूम चेंज होने वाला है मतलब वर्क डन होने वाला है. करेक्ट? So your this heat energy, first it will go for energy. एनर्जी देखो दोनों केसेस में du ही लिया है मैंने. इन बोथ द केसेस आई हैव टेकन एज du. क्यों? क्योंकि आई एम कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. एंड when I am working at same temperature, I am not keeping the temperature constant. This is wrong term. When I am working at same temperature, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया सेम टेम्परेचर पे, तो दोनों में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इट विल बी कांस्टेंट. दोनों में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. तो यहाँ पर ये जो dq दोगे ये 2 चीजों के लिए यूज होगा. dq is equals to du plus pdv, where dv is the change in volume now. ठीक है? And p is the pressure which is constant. So this equation becomes, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, dq2 is equals to cp dt. This whole term is written as cp dt as well. तो ऊपर वाला dq is equals to du is equals to cv dt था. नीचे वाला dq is equals to du plus pdv, which can also be written as du plus pdv को आप एक साथ cp dt लिख सकते हो. You can write this. ये कैसे आया, क्या आया? Either you will study in thermodynamics, or if it is not there in your syllabus, then you don't need to study. कि ये proof कैसे हुआ? इसका proof है, it exists. pdvq, यहाँ पर constant pressure है ना, तो वॉल्यूम चेंज होने वाला है. एंड वॉल्यूम चेंज होने वाला है मतलब वर्क डन होने वाला है. और वर्क डन किससे देते हैं हम लोग? pdv से. where p is the pressure and dv is the change in volume. समझाऊं? मैम वो तो 0 हो जाएगा ना जैसे ऊपर हुआ. क्यों? ऊपर तो वॉल्यूम कांस्टेंट था तो dv चेंज ही नहीं हुआ. पर यहाँ पे प्रेशर, चेंज इन प्रेशर थोड़ी ले रहे हैं हम. यहाँ पे सिर्फ p ले रहे हैं ना. इट इज ओनली अ प्रेशर, इट इज नॉट चेंज इन प्रेशर. समझ में आया? प्रेशर लेकिन कांस्टेंट है. इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. अच्छा ओके. वॉल्यूम एक मिनट में ऊपर का दिखाओ ना थोड़ा सा. ये ऊपर वाला पार्ट दिखाओ ना. नहीं ओम ऊपर. यहाँ पे सुनो. This dv is the change in volume, but when I am saying constant volume, तो dv को मैंने change in volume बोला, तो यहाँ पे तो change होगा ही नहीं. So this dv will become 0. So this whole term will become 0. बराबर. But in constant pressure, यहाँ पे dp नहीं है, सिर्फ p है.
तो जो कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हो वही वैल्यू यहाँ पे डालोगे ना। चेंज वही इन रहेगा। प्रेशर हाँ, हुई है, और चेंज तो समझ में आया? होएगा। सो हाँ, अपर वन चेंज इज, वॉल्यूम है। ओम समझ गया? हाँ, यूज मैं करो। नहीं पूरा समझा समझा, मिस वो कांस्टेंट पूरा प्रेशर समझा। पे मिस वो गायब कैसे, मतलब वो किधर गया वो पीडीवी? कांस्टेंट प्रेशर में, अरे हाँ यहाँ पे ये पूरा ना, ये पूरा पार्ट, हाँ, ये पूरा पार्ट आपको डिराइव करके सीपीडीटी देता है। अच्छा ये पूरा पार्ट है क्या? ओके ओके समझ हाँ, गया। ये पूरा पार्ट सीवीडीटी, करेक्ट? CV is the molar specific heat at constant volume and DT is the change in the temperature, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें। दूसरा, जब आपने हीट दिया एट कांस्टेंट प्रेशर, इट वाज DU प्लस PdV। अब यहाँ पे काम भी होगा, यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा था क्योंकि वॉल्यूम वाज कांस्टेंट। सो दिस इज योर CPDT। ओके, नाउ ये जो DU है, ये DU दोनों में सेम होने वाला है। सब्स्टिट्यूट दिस फर्स्ट इक्वेशन इन योर सेकंड इक्वेशन। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट हियर, DU की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट हियर, इट विल बिकम CVDT plus PdV is equals to CPDT. Okay, are you clear? इसको यहाँ ले जाते हैं, PdV is equals to CPDT minus CVDT। ठीक है, नेक्स्ट DT कॉमन कर दो, PdV is equals to CP minus CV into DT। अब जरा ध्यान से देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है? फॉर अ 1 मोल आई एम टेकिंग PV is equals to nRT, N is equals to 1 mole, so PV is equals to RT. Let's take a derivative on both the sides. It become PdV. Pressure तो change नहीं हो रहा है, pressure is constant in this case. Okay, so there is no change in the pressure in this particular case. So PdV जो change होता है सिर्फ D उसके आगे लगेगा। PdV ये केस में, ये जो हमने केस लिया है सेकंड केस, जिसके ऊपर हम आगे डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें प्रेशर इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज चेंजिंग। PdV R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सो इट विल बी सेम, बट टेम्परेचर चेंज होगा, करेक्ट? सो DT मतलब PdV क्या होता है? RDT भी होता है। विल सब्स्टिट्यूट इट हियर। सो RDT is equals to CP minus CV into DT. This got cancelled and you got the Mayer's relation as CP minus CV is equals to R. This is your Mayer's relation. Hope you are clear. Please ask if you have any doubt, then we'll stop here. मतलब स्पेसिफिक हीट्स को माइनस करेंगे तो गैस कौन? Exactly. Specific heat को minus करोगे at constant pressure and constant volume, you get a gas constant. This मिस is what ऊपर is करो Mayer's ना थोड़ा, relation. क्या? मिस वो ऊपर करो ना पेज। कुछ डाउट है तो पूछ लो। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं रखते तो? मिस नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं रखते तो फिर n इंट्रोड्यूस करते हो और कुछ नहीं। आपका जहां जहां पे आपने n1 ले लिया है, वहां पे आप n की वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट्स ऑल। मिस DQ1 छोटा होगा क्या DQ2 से? सी बच्चा, यहाँ पे DQ1 और DQ2 तुम खुद दे रहे हो। That is the amount of heat that you are giving. So that depends upon you. This was the experiment which you are doing, correct? And you observe the things. ये सारी चीजें आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है अमन। आप जो भी हीट देते हो खाना पकाते वक्त, यू नो कि उसमें से कुछ अमाउंट आपका खाना पकने में जाता है और कुछ अमाउंट उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। वही चीज यहाँ पे भी रिप्रेजेंट की है। दैट्स ऑल। प्रेशर कुकर में आप वही करते हो। Is there anyone who is having doubt in this derivation? Please ask. Otherwise, we will stop here. Om, please unmute yourself and ask. ये स्पेसिफिक हीट मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है ना? Of course, it is a materialistic. Material to material ये change होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मेटल्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग मेटल को अलग अलग हीट रिक्वायर होता है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। मैम थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक। वेट,
एक मिनट ओम, लेट मी क्लियर कि सबका डाउट क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि आपको मेयर्स रिलेशन 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है और इस तरीके से करना है कि आपको याद होना चाहिए, सिर्फ लिख के नहीं देखना है मुझे। जिस तरीके से प्रेशर अगर आपने याद रखा है दिमाग में, उसी तरीके से बाय हार्टिंग करनी है आपको। हालांकि अगर आप चीजों को समझते हो तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एज वेल, so you have to be prepared with the things. So I think there is no doubt to anyone, so we will end here. Kamlesh sir, okay, चलेगा sir आप एंड कर क्वेश्चन। okay. ओम टॉपिक क्या टॉपिक है, क्या एक डाउट है? छोटा